Okay. So exercise 1.3 question number 1 we have done. Question number 2. Okay. 1 by 7 is already given. We have to find for 2 by 7. So 2 into whatever 1 by 7 is. This way we'll get 1 by 7, 2 by 7 and 3 by 7. Now question 3. Question 3 was also homework. 0.6 bar. What is the answer? Ma'am, 0.6. Ma'am, 2/3. 2 upon 3. Yes, ma'am. Okay. Second, Ma'am, 0.47 bar. Ma'am, it is 47. 47.90/99. Yes, ma'am. 47 upon 99. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute, let me check. It is 43 by 90. बार किस पे है? बार सिर्फ 7 पे है. 0.477 ऐसे करना है इसको. ठीक है. तो x equals to 0.477 dot dot multiplying by 10 both sides. 10x equals to 4.7777 dot dot dot. This is equation 1. This is equation 2. 2 minus 1. 10x minus x equals to 4.7777 dot 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 minus 0.477 dot dot. अब ये सब्ट्रैक्ट करो. 4.777 minus 0.4777. So it is 0.003. 4.3. 9x equals to 4.3. X equals to 4.3 by 9. 4.3. So it is 43 by 90. Answer is 43 by 90. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Both of you have done some Ma'am, mistake. क्या mistake की ma'am. थी? मैम वो Ma'am, that 4 को भी काट के ma'am दोनों को बार हाँ, तो हमने- ये ध्यान रखना है बार को कितने डिजिट्स पे है. अगर एक पे है तो you have to repeat only that digit. You don't have to repeat both the digits. So always read the question carefully. Okay. Then third part. Ma'am, third Yes. 1/999. Okay. Third part answer is 1 upon 999. Okay, 1 it is correct. Then question fourth. Express 0.99999 in form of P upon Q. What it is coming? मैम मैम पॉइंट हट जाएगा और अपॉन 5 zeros लग जाएंगे आगे. नहीं नहीं, पर ये तो डॉट 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 है. ये तो बार वाला है. कैसे करेंगे इसको? लेट x इक्वल्स टू 0.1234 डॉट डॉट डॉट. ओके. बेसिकली क्वेश्चन क्या है? 0.9 बार क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन ये है, राइट 0.9 बार इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. बार कितने डिजिट्स पे है? ओनली 1 डिजिट. सो मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides. Okay. So 10x equals to 9.999 dot dot dot. This is 1. This is 2. Equation 2 minus equation 1. So 10x minus x equals to 9.999 dot 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 minus 0.9999 dot dot dot. Okay. Ma'am, x is 1/1. So 9x equals to, this is 9. So x is 1 actually. Okay. This is the answer. Okay. So why does this answer make sense? Because 0.999 dot 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 is approximately equal to 1 only. Okay. That's why this answer is correct. ऐसे होगा ये क्वेश्चन. अगर नहीं इंटरप्रेट किया है इसको करेक्टली तो देन डू इट दिस वे. ओके. Yes, ma'am. Then question number 5.
1 डिवाइड बाय 17 करना है. सो एक्चुअली इट इज वेरी लेंथी, क्योंकि हमने देखा था कितने डिजिट्स हो सकते हैं मैक्सिमम रिपीटिंग स्ट्रिंग में, वो डिवाइजर पे डिपेंड करता है. यहाँ डिवाइजर क्या है, 17 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीटिंग स्ट्रिंग में होंगे वो 16 हो सकते हैं. तो ये 16. डिवीजन 16 तक चलेगा. So this is homework actually. You will do it at home. Like it will take your one complete page of your register. इतना लंबा होगा ये. Okay. So you will do this division at home after class, and let me know that how you have done it. We'll discuss this in next class. Okay. Getting what I Okay, am ma'am. saying? Ma'am, Yes, ma'am. Yes, Manav. ma'am, in our exams, question can come that, ma'am, ma'am, like questions that are given in our book, like summary. What you are asking? Ma'am, 1 second, can I share something? Yes, share karo. 1 minute, I'll stop sharing and I'll give you the permission. Okay. Now 1 minute. 1 minute. Question 6. So question 6 is, look at several examples of rational number in form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property Q must satisfy? Okay. So अब ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जैसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, जैसे हमने देखा था 7 डिवाइड बाय 8, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इसका आंसर आ रहा था 0.875. ठीक है. सपोज 1 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर आता है 0.2. दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.5, दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. तो ये बोल रहा है कि जो एग्जाम्पल्स है रैशनल नंबर के जो सारे टर्मिनेटिंग है, उसमें तुम Q के बारे में क्या बोल सकते हो, मतलब Q के ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है Q की that must be satisfied for a terminating decimal expansion. मतलब 7 by 8 terminating है, 1 by 5 terminating है, 1 by 2 terminating है. ठीक है. तो we can say actually the Q, ये सब है Q. Okay. So Q has only powers of 2 or 5 or both. ठीक है. Prime factorization of Q has only powers of 2 or 5 or both. तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को पहले सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा. बेसिकली ये है इसका मतलब. ठीक है. जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसमें जो Q है वो हमेशा its prime factors will have either 2 or 5 or both. Okay. And suppose 1 by 3 is there, तो हम इसके डिनोमिनेटर को देख के ही कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. जो टर्मिनेटिंग होंगे उसमें डिनोमिनेटर पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है दोनों को. ठीक है. उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा. ओके. इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Okay. 3 numbers you have to write whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. 0.10, 00, 1,000, 1 ... मतलब यहाँ पे हम कहीं पे बार नहीं लगा सकते, हमको पता नहीं है. जो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है वो सब इररेशनल होंगे, और इसमें डबल डॉट ये डॉट्स लगाना जरूरी है. ओके. 0.2, 03, 000, 4, 0000, ...
ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हो जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा हो, पैटर्न मत बनाना इसमें, बस इम्पोर्टेंट ये है। 0 2 0 0 2 ट्रिपल 0, मतलब एक बार 2 0 लगा दिए, एक बार 3 0 लगा दिए, और फिर डॉट डॉट डॉट। दिस ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन और इररेशनल नंबर्स। ओके, देन क्वेश्चन 8। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Question 8. Find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11. Between 5/7 and 9/11, you have to write 3 irrational numbers. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? 5 को 7 से डिवाइड करो। रैशनल नंबर्स नहीं निकालना है, क्या निकालना है? इररेशनल नंबर्स। You have to read the question carefully. Okay, when you will divide 5/7, you will get 0.714285 बार। ठीक है, ये जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करना आता है तो हमको ये नंबर मिलेगा। 9/11 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.81 बार। ठीक है, अब हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में इररेशनल नंबर्स लिखना है 3। इररेशनल नंबर्स मींस मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में, तो यू कैन राइट 0.72 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 डॉट। ये डॉट नहीं लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डॉट्स लगाना भी जरूरी है, और कोई भी पैटर्न मत बनाना, ऐसा कोई भी पैटर्न मत बनाना जिससे बार लग सके। ठीक है, नेक्स्ट 0.7301 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट और 0.785320 and 0 0 0 dot 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 dot. ओके, ये Okay, नंबर ma'am. ओके 7 1 और 8 1 के Ma'am, बीच में last- लिख। यस मैम ये लास्ट वाले में 78532 साथ वाला तो इसको बार लगेगा। क्यों बार क्यों लगेगा? मैम ये सब नंबर्स है, उस पर बार लगता है, मतलब ये वापस से रिपीट हो सकता है। हाँ, तो ये रिपीट नहीं हो रहे, हमको इररेशनल नंबर्स लिखना है। इररेशनल नंबर्स तो नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके मैम। Okay. In Yes, like ma'am. whatever we are doing here after class, you can go through this topic and ask me doubt in next class. In case कोई clear नहीं है तो you can ask me doubt in next class. Okay. Then after question 8. Okay. Next is question 9. Okay. So question 9. Classify the number as rational and irrational. First is root 23. Is it rational or irrational? Irrational. It is irrational. I'm irrational. Okay, square root of all prime numbers is irrational. Okay. Then second, under root 225. Ma'am, क्या rational. इसकी वैल्यू क्या होती है? Ma'am, 15. 15. Ma'am, 15. So it is a yes, rational number. ठीक है. Then third, 0.3796. Ma'am, irrational. Yes, Yashvi. Third वाला. मैम ये नहीं आता। इसका देखो डेसिमल पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में 4 0 लग गए। We can write this number in form of P upon Q. तो क्या होगा ये? Ma'am, rational. This is a rational number. मैम रैशनल। ठीक है. Next. यस मैम। Next is 7.478 478 dot dot dot. ये क्या होगा? Ma'am, irrational. No. ये देखो 0.478 Ma'am, बार right. लिख सकते हैं हम इसको, Yes, ma'am. तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर. Yes, ma'am.
ठीक है. Next. Yes, Yashvi, is it clear? Why this is a rational number? Yes, ma'am. क्यों है ये rational number? Yes, ma'am. Ma'am, No, because why? it is repeating. हाँ. What type of rational number is this? Repeating. Ma'am, this is repeating. Ma'am, Non-terminating. because repeating. Non-terminating repeating or non-terminating recurring rational number. Yes. Clear? Yes, ma'am. Then 1.10, 100, 100, 1, 1, 2, 3, 4, ... What type of number is this? Irrational. It is irrational. क्योंकि इसमें हम बार भी नहीं लगा सकते हैं, कोई पैटर्न नहीं है इसमें. जैसे 101 101 ऐसे रिपीट हो रहा होता तो ये रैशनल होता है, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है. ओके, सो इट इज इररेशनल. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so actually after this exercise 1.4 we'll do on Monday. Exercise 1.4 we'll do on Monday or Tuesday whenever our next maths class will be there. Today I am going to start operation on real numbers. Okay, ऑपरेशन 1.4 के बाद वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो Yes, ma'am. ठीक है. अब ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. ओके, अब नेक्स्ट सपोज एग्जांपल 12. ओके, चेक whether 7√5, 7 by root 5, root 2 plus 21 and pi minus 2 are rational, are irrational or not? Ma'am, can you repeat, ma'am? Example 21, page 18. You can see in your book, page 18, example 12, not 21, example 12, page 18. Is it given? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Example 12 मिल गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. अब हमने पहले इररेशनल नंबर्स देखे थे. आई विल रिपीट इररेशनल नंबर्स. ठीक है, इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल थे √2. ठीक है, √2 की वैल्यू व्हाई इट इज इररेशनल मैंने बताया था कि इसका ये एक्सपांशन होता है √2 का 1.414 21356237 इसमें कहीं भी बार नहीं लगा सकते हम. ऐसे पैटर्न बनता है कि कहीं पे भी हम बार नहीं लगा सकते हैं. सो इट इज इररेशनल. सिमिलरली पाई जो हम सर्कल में यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई डी, 2 पाई आर, वो वाला पाई दैट इज ऑल्सो इररेशनल. पाई की वैल्यू होती है 3.14 3.14 1592653 589 ... So actual value of pi is this, and it is also irrational number because there is no pattern. Okay, and non-terminating, non-repeating decimal expansion is there of these numbers. Okay, अब next coming to our question. 1 minute, where we check whether 7√5. अब हम एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इररेशनल. ठीक है, ये याद रखना है. स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इज इररेशनल. तो √5 रैशनल होगा या इररेशनल? Irrational. √5 विल बी इररेशनल. √5 की वैल्यू होती है 2.236 ... ओके, neither terminating nor repeating. ओके, तो 7√5 की वैल्यू होगी 7 into this number, तो वो होगी 15.652 ... So it will also be a
इररेशनल नंबर। हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करने को दिया है, 7√5 है इररेशनल नंबर? यस, इट इज अ इररेशनल नंबर। ओके, सिमिलरली 7/√5। अब 7/√5 डिवाइड करना इजी नहीं है, ठीक है? तो जब भी हमको डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमको डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर मिलता है ऐसा, तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको पता है कि हम कोई भी चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इट विल बिकम 7√5 एंड √5 into √5 is 5. ओके, नाउ 7√5 की वैल्यू हमको पता है 15.652 डॉट डॉट डॉट, हमने अभी निकाली ऊपर। उसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.1304 डॉट 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 डॉट। सो दिस इज ऑल्सो ए इररेशनल नंबर। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट इज √2 plus 21। √2 की वैल्यू है 1.414 डॉट 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 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 23.414 डॉट डॉट डॉट। सो इट इज ऑल्सो ए इररेशनल नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट इज पाई माइनस 2। पाई माइनस 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डॉट 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 माइनस 2, सो इट इज 1.14 एंड 15, लाइक यहाँ पे जो भी नंबर्स है डॉट डॉट डॉट, so it is also irrational number. Okay, ठीक है? अब Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। add 2√2 plus 5√3 and √2 minus 3√3. okay, 2√2 plus 5√3 plus √2 minus 3√3. ओके, जैसे हमने एल्जेब्रा में लाइक टर्म्स को ऐड करते थे, सबको सबसे ऐड नहीं कर सकते हैं एल्जेब्रा में, वैसे ही यहाँ पर भी 2√2 और खाली √2 का मतलब क्या है, 1√2, इनको दोनों को ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे माइंड में थिंक दैट वे, सपोज वी टेक √2 आउटसाइड, इन दोनों में से मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, 2 plus 1, 2 plus 5. 2 plus 1, इन दोनों में से ले रहे हैं, हियर एंड हियर। इफ आई टेक √2 कॉमन, it is 2 plus 1. okay, next is if from this term and this term I am taking √3 common, so what is left, Yashvi? 5 minus 5 minus 3. 5 minus 3. okay, so 5. yes, so ये क्या हो गया, अब √2 into 3, हमेशा जो कांस्टेंट होता है या जो रैशनल पार्ट होता है उसको पहले लिखते हैं और इररेशनल हमेशा बाद में लिखते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3√2। 3√2. Yes. इसको क्या लिखेंगे, 2√3। 2√3. ओके, अब इन दोनों को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस यहीं पे हमको रुकना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। Yes. क्लियर है? Yes. Okay, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एग्जांपल 14। मल्टीप्लाई 6√5 by 2√5. ओके, सो 6√5 into 2√5। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो होल पार्ट है, जो रैशनल पार्ट है, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। 6 into 2 क्या होगा, 12। √a into √a is always a। ठीक है, √5 into √5 is 5। 5. 5. 60. तो ये 60 हो जाएगा। Yes. ओके, Yes, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. then now
example 15 divide, okay, 8 root 15 by 2 root 3. Okay, so 8 root 15 को 2 root 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब जो रैशनल पार्ट है इसको हम कट कर सकते हैं. ठीक है, ये तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 4. रूट 15 कैन बी रिटन एज रूट 5 इंटू रूट 3. So this can be written as root 5 into root 3 upon root 3. Root 3 and root 3 also cancelled. So our answer is 4 root 5. 4 root 5. Clear है यहाँ तक? Ma'am, can you explain once? Ma'am, can you Root explain once again? Yes, I am explaining. 8 root 15 is divided by 2 root 3. 8 root 15 divide by 2 root 3. Okay. ये जो रैशनल पार्ट है, दिस आई कैन डू लाइक नॉर्मल डिवीजन. 8 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4. ठीक है, तो अब 4 रूट 15 बाय रूट 3. रूट 15 कैन बी रिटन एज रूट 5 इंटू रूट 3. रूट 15 कैन बी रिटन एज रूट 5 इंटू रूट 3. ओके, सो 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 upon root 3. Root 3 and root 3 cancel. It is 4 root 5. This is the answer. मैम ये जो रूट 15 और रूट 3 कट नहीं सकते हैं? रूट 15 और रूट 3 को हमने, रूट 15 को पहले हम क्या लिख सकते हैं, हमने वो लिखा है रूट 5 इंटू रूट 3 और फिर हमने कट किया है. अच्छा, ओके मैम. ठीक है. Now, Yes, ma'am. So actually, next thing is, अब we have some identities. जैसे हमारे पास है रूट a इंटू बी. पेज नंबर 21 बॉटम. I am explaining root a into root b. This can be written as root a into root b. जो हमने लिखा था ना रूट 15. रूट 15 एक्चुअली क्या है? 5 into 3 is 15. So this can be written as root 5 into root 3. Okay? Yes, ma'am. Then Yes, ma'am. root of a upon b can be written as root a upon root b. Okay? Yes, Then under root of a plus under root of b into under root of a minus under root of b. Okay? तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 8th क्लास में, x प्लस वाई x माइनस वाई. क्या होती है आइडेंटिटी? x square plus y square. ma'am, x square minus y square. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो जब हमारे पास ये ऐसा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर. बिकॉज इट इज एक्स, इट इज वाई, इट इज एक्स, इट इज माइनस वाई. So it is basically of the form x plus y, x minus y. This can be written as x square minus y square. Okay. Under root of a square means a, under root of b square means b. So this type of thing can be written as a minus b. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Similarly, some more expansions are given. a plus root b, a minus root b. इसको क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? Ma'am, a square minus b. a square minus root b the whole square. तो ये हो जाएगा Yes, a square minus b. ओके. ऐसा Yes, करो कि मैंने तुमको जो मीटिंग के लिए जो आईडी दिया था ना, उसमें 2 लिंक थे, 2 सेशन थे, सेशन 1 सेशन 2. ये मीटिंग एंड होने वाली है, हम सेशन 2 पे क्लिक कर लेते हैं, 10 मिनट उसमें करके, और देन आई एम एंडिंग द क्लास. तो सेशन 2 पे लिंक पे क्लिक करो. आई एम एंडिंग दिस मीटिंग. हमको फिर से ज्वाइन करना है सेशन 2 में. ओके? Yes, ma'am. Okay. यशवी क्लियर है क्या बोल रही हूँ?
Yes, ma'am. Okay.